أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام تو الحمدللہ ہم لوگ فیملی 1 پہلے کر چکے ہیں 3 مہینے میں، فیملی 2 اور فیملی 3 2 دن میں ہم نے کرے۔ آج انشاءاللہ فیملی 4 شروع کریں گے۔ اس فیملی کا مصدری نام افعال ہے۔ اب تینوں کے نام آپ جانتے ہیں۔ پہلی جو دوسری فیملی تھی اس کا نام تھا باب تفعیل، فیملی 3 کا نام تھا باب مفاعلہ، اور فیملی 4 کا نام ہے باب افعال۔ یہ تینوں ایک جیسے ہیں اور تینوں میں مضارع کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے علامت مضارع اچھا علامت مضارع آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہلو جی آ رہی سر، الحمدللہ آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو علامت مضارع پر پیش اور عین کلمے پہ زیر آتا ہے۔ یہ 3 باب میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کل ملا کر لیٹرز 4 ہو رہے ہیں۔ جب 4 ہوتے ہیں تو علامت مضارع پر پیش آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، بہت اہم بات بول رہا ہوں۔ یہ 4 حرف جیسے ہی ہوتے ہیں علامت مضارع پر پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ویژول کلوز ہے، آنکھوں سے دیکھ کر پہچاننے کا۔ وہ اس طرح پہچانیں گے کہ اس میں جو ایک حرف مزید فی ہی ہے وہ ہے حمزہ، اور یہ حمزہ علامت لے کر آ رہا ہے، اس پر زبر دکھ رہا ہے۔ جب حرکت لے کر آتا ہے یہ تو اس کو حمزۃ القطع کہتے ہیں۔ تو یہ 3 لیٹرز جو ہیں فا عین لام، ان کے پہلے آتا ہے حمزۃ القطع، اور اس کا نمائندہ، اس کا ریپرزینٹیٹیو سیمپل ہے اسلمہ، اور اس کا سانچہ اس کا جو برتن ہے یا ڈائی ہے وہ ہے افعلا۔ فعلا کے اندر حمزۃ القطع ایڈ ہونے سے یہ بن گیا افعلا۔ اگلی بڑی اہم بات بولنے لگا ہوں میں کہ مزید فیہ کے کل ملا کر 8 باب ہے، جو آپ کو کل حافظ صاحب نے بھی لکھ کر بتائے اور میں بھی شروع سے بتا رہا ہوں۔ ان 8 باب میں سے 60% استعمال جو ہوتا ہے، 8 باب میں سے 7 باب 40% استعمال ہوتے ہیں، لیکن 60% جو استعمال ہوتا ہے وہ باب افعال ہوتا ہے۔ تو یہ سب کا سردار ہے، سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور سب سے آسان بھی ہے۔ تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، فعلا کے 3 کلمات کے سامنے ایک ہم حمزۃ القطع لگاتے ہیں اور اس کے بعد کا فا آتا ہے، اس پر سکون دیتے ہیں، اور بعد میں 2 زبر آتے ہیں ماضی میں، تو بنے گا اسلمہ یا افعلا۔ مضارع بنا تو آپ جانتے ہیں، تو یہ بنتا ہے یفعلو۔ یہ ہے آپ کے سامنے سانچہ افعلا یفعلو افعالا۔ تو ان تمام 8 کے 8 باب کے نام جو ہے مصدر پہ رکھے گا، تو افعلا یفعلو افعالا، اور اس پر رکھیں گے ہم سین لام میم، تو یہ بن جاتا ہے اسلمہ یسلم اسلاما۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ اس کو اور بھی کھول کے لکھتے ہیں یہاں پہ، تو اس طرح سے اس کے اوپر کے
तश्कील इस तरह से हो जाएगी, हरकत इस तरह हो जाएंगे। तो आप इनको देख लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। अच्छा, माजी का इफाल और मुजारे युफ्इलु, इसकी बनाने का तरीका खाली आपको हमजा ऐड करना है और कुछ नहीं है। और इसका काम है, एक और एक काम है, सबसे बड़ा और बड़ा अहम काम है, ये लाजिम को मुतअद्दी बनाता है। फेल जो लाजिम होता है आप जानते हैं, ऐसा फेल जो मफूल को नहीं मांगता उसको लाजिम कहें, और जो फेल एक एक्स्ट्रा वर्ड की डिमांड करता है मफूल की शक्ल में उसको मुतअद्दी कहें। तो इसके काम को जरा नोट कीजिए। ये लाजिम फेल को मुतअद्दी बनाएगा, और अगर कोई फेल मुतअद्दी पहले ही है तो उसको मुतअद्दी दर मुतअद्दी बने, यानी मफूल अव्वल और मफूल सानी पैदा होगा। फिर मैं रिपीट करता हूं, ये लाजिम फेल को मुतअद्दी बनाता है, और अगर पहले से ही फेल मुतअद्दी है तो उसको मुतअद्दी दर मुतअद्दी, यानी कि एक मफूल के बजाय दो मफूल पैदा कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझे आप? तो अगर आप इसको उर्दू की शक्ल में देखेंगे तो हम ये रोज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इकराम, एहसान, इस्लाम, इखराज, इरसाल, इदगाम, इल्फाक, इनकार, अनआम, ठीक है, इंसाफ, इस्लाह, इकरार और इल्हाम। तो ये हमारे लिए उर्दू के जुबान के हिसाब से कोई नया लफ्ज नहीं है। तो ये तमाम चीज बैठते हैं इस आल पे। ये मजदरी नाम है। ये मजदरी नाम का इस्तेमाल हम उर्दू में बहुत जोर से करते हैं, लेकिन ये तमाम मटेरियल आया है अरबी जुबान से, उर्दू में आया है अरबी जुबान से। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइए, बाप इफ़आल, माजी और मुजारे बनाने का तरीका। तो माजी और मुजारे बनाने के लिए आपने क्या करना है? हमजा तो फता जोड़ना है, खरजा को अगर हमजा तो फता जोड़े तो अखरजा बने। उसने निकाला, खरजा क्या था भाई? वो खुद निकला। अखरजा उसने किसी और को निकाला। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ख्याल कीजिए, ये जो काम करता है ये एक ही झटके में करता है, बातदरीज वगैरह नहीं करता है, एक बार में ही काम कर लेता है। ठीक है? और इसका मुजारे बनेगा अखरजा का युखरिजु, और इसका मजदर बनेगा इखराजन। अब देखने वाली बात है कि इसके पास हमजा था पहले, लेकिन मुजारे में हमजा का कोई निशानी नजर आ रही क्या आपको? अफ़अला युफ़िलु। अब हमजा तो होना चाहिए था इसमें, लेकिन ये तालीलात की वजह से और पढ़ने की आसानी की वजह से मुजारे में हमजा को निकाल के काट के फेंक दिया गया। तो बनना चाहिए था ये युफा यू अफ इलो। क्या बनना चाहिए ओरिजिनल? यू अफ इलो, लेकिन क्या बनाया गया इसको? युफ इलो। ये बात को आप ख्याल करेंगे, क्योंकि फेल अम्र होगा तो वो हमजा फिर वापस आएगा। मैंने क्या कहा आपको सब सुने आया, समझ में आया क्या? नहीं आया? और वापस एक बार समझाए। हाँ, तो इसके चार लेटर क्या है? अफ अला, है ना? अफला। जरा मुझे हाँ या ना बोलते जाओ। जी 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 सर। तो इसमें हमजा तो खता है, वो मुजारे में नजर आ रहा है। देखो यू येलो में दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है सर।
नहीं दिख रहा। तो ये टेलरिंग किया हुआ है, इसको काट कूट के बनाया हुआ है। नीचे की लाइन में जरा गौर फरमाइए आप, ये पढ़िए, ये दरअसल इसका ओरिजिनल रूप है। यू अफ एलो बनना चाहिए उन्हें। क्या बनना चाहिए? यू अफ एलो। ये उसकी ओरिजिनल शक्ल है, इसको भूलना नहीं आपने। फिलहाल ये चले जाएगा चाय पीने के लिए, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा दिए और ये बन गया यू पीलो। लेकिन जब हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसको तब्दील करेंगे, इसकी एराबी हालत बदलेंगे, तो आगे चलकर इन्हें वापस लौट सकता है। क्योंकि जब आपको अम्र बनाना है तो अलामत मुजारे हटा देंगे हम। अलामत मुजारे हटा देंगे तो फा पे क्या है भाई? सुकून है ना? हाँ या ना बोलो। जी सर। हाँ, तो सुकून से पढ़ना नहीं आता। तो एक दूसरा हमजा था हमारे पास, हमजातुल वस्ल, जिसको हम बुलाते थे पहले जब भी मुश्किल में रहती थी, पढ़ना नहीं आ रहा, तो हमजातुल वस्ल को बुलाते थे। क्योंकि यहाँ पहले से ही एक हमजा है, तो वो जो पहले वाले हमजे को बुलाने की जरूरत नहीं है, तो हमजातुल खता का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी सर। हाँ, तो आगे चल के आएगा तो मैं आपको उसकी निशानदही इंशाअल्लाह। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? जी नहीं सर। हाँ, चलिए और थोड़ा डिटेल से। हाँ बोलिए भाई, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत सारे सवाल करो इसको, क्योंकि ये 60% आता है, ये 60% इसका कुरान में जिक्र हुआ है। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेफिक्र बेझिझक पूछ। हाँ, जरा यहाँ पे गौर फरमाइए क्या लिखा है, आप नोट कर लीजिए या आप इसका फोटो ले लीजिए। जिस फेल में मफूल मौजूद हो उस फेल को हम मुतअद्दी कहते हैं, और जिस फेल में मफूल मौजूद ना हो उसे हम लाजिम कहते हैं। जो लोग भूल गए होंगे उनके लिए लिखे खास करके हम। फेल मुतअद्दी के और लाजिम में क्या फर्क है? क्योंकि ये बाप इफ़ाल का काम ही है लाजिम फेल को, इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव बनाना। उर्दू में बोले तो क्या बोलेंगे हम? लाजिम फेल को मुताद्दी बनाना और मुताद्दी दर मुताद्दी बनाना। ये इसकी डिटेल देख लीजिए आप, क्या क्या करना है। बाप इफ़ाल का फाइल मुजारे में हमेशा पेश से शुरू होगा और इसके आई कलिमे पे जेर होगा। जैसा पहले दो हमने बाप पढ़े हैं, तफकीर और मुआला, उसी के जैसा ही मुजारे यहाँ तक आएगा। ये इसलिए टीम को एक टीम बनाया है। कल मैंने मजाक से बोला था इन खानदान का नाम खान साहब रखे। ये तीनों भी एक ही फैमिली के हैं, एक ही खानदान के हैं, क्योंकि इनके तमाम के मुजारे एक ही जैसा चलते हैं। कोई सवाल? तो ये खुसूसियात है, देख लीजिए आप। ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाता है, और कोई पहले से ट्रांजिटिव है तो उसको डबल ट्रांजिटिव बना देता है। बस इतना ही खुसूसियत इसकी है। मैंने कहा है बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा ख्याल करके पढ़ो। इसके अंदर हमजा तो खता से शुरू होता है, बस इसमें और कोई बात याद रखने के काबिल नहीं। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन वहुवा मुस्लिमुन। अब इसका अगर हमको मजरूल बनाना है तो याद होगा आपको, कोई लफ्ज बनाएंगे, मुस्लिमा युस्लमु इस्लामन वहुवा मुस्लिमुन। अस्लिम ला मुस्लिम। ये जरा यहाँ पर देख लीजिए आप। अंजला और नजला में फर्क देखिए। कल परसों जो पढ़े थे बात तफील थी वो,
ये अंदला अफअला का सीगा है, ये आप नोट कर लीजिए या फोटो ले लीजिए और रख लीजिए आपके पास, हमेशा ये कंफ्यूजन दूर करने में काम आए। ये पढ़ चुके हैं हम, ये स्लाइड आपके लिए बाप तफील और बाप इफ़आल में फर्क पैदा करके बताए। हाँ देखिए, टू मेक समबडी डू समथिंग और टू मेक समथिंग हैपन, किसी को कुछ करने लगाना या कुछ होने को मजबूर करना। देखिए इंग्लिश में जो लिखा है टू मेक समबडी डू समथिंग, यानी किसी को कुछ करने का जबर करना, किसी को कुछ करने का जबर करना या किसी को कुछ करने की वजह बनना, ये दो बहुत अहम है। उर्दू में लिखना नहीं आता ये बातें, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने अंग्रेजी का सहारा लिया। इसको पॉजिटिव बोलते, पॉज का मतलब है वजह, कोई काम होने के लिए कुछ करना, जैसा किसी बच्चे को हंसाना, बोलो क्या करना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, ये तमाम चीजें कोई उसकी वजह बनता है। तो पहला काम क्या है इसका, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी वजह बनना, कोई काम किसी से करवाना है, जैसा दखला, उन्हें खुद दाखिल हुआ, लेकिन अगर कोई दाखिल नहीं हो रहा है तो उसका हाथ पकड़कर अंदर लेके आना, तो अदखला हो जाएगा। जबरदस्ती आप अपने दिल से लगा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं है उसमें, करने के लिए उन्हें प्यार से भी ला सकता है ना, उसको जबरदस्ती नहीं अच्छा करना। अच्छा हाँ। जी सर। और दूसरा, कोई काम करने की वजह बनना, यानी आपने सर्जरी कराए तो डॉक्टर वजह बनेगा ना सर्जरी की, हम उर्दू में बोलते करवाना, बोलो करवाना। हाँ, इसमें से कुछ करवाना, यानी बच्चा खा नहीं रहा है, खिलवाना, खाने लगाना उसको, बच्चा हंस रहा नहीं तो हंसवाना, बच्चा रो रहा नहीं तो रुलवाना। समझ में आया? यानी किसी को काम पर आमादा करना किसी भी तरीके से। हाँ, चलिए चलिए, गुड, वेरी गुड, यानी आप वजह बन रहे उसकी, जी जी सर। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस। और इसमें एक बार ही काम होता, कैसा होता, एक झटके में काम होता है, एक्शन टेक्स प्लेस एट वंस। अंजला, उसने उतारा, उसने मुकम्मल एक सेट की चीज उतार दिया। इसमें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल नहीं है, इतना याद रख। नजला, ये मुतादी है, वो खुद उतरा। अंजला, उसने उतारा, कोई चीज खुद ब खुद उतरती नहीं, उसने उतारा। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, जहाबा, जहाबा का मतलब वो गया, ये सेंटेंस के अंदर, ये जुमले के अंदर मफूल की जरूरत नहीं है। क्या गया, किसे गया, मायने निकलते नहीं, जहाबा खुद एक जुमला है, तो जहाबा खुद पर, खुद के नफ्स पर काम हो रहा, खुद की जात पर काम हो रहा, ठीक है। जहाबा का मतलब हो गया, अब उसको निकालना है, कैसे गया तो उसको कैसे निकलवाना है, उन्हें निकल रहा नहीं, अजहबा, उसको निकाले, जहां था उन्हें वहां से निकाले। दखला, वो दाखिल हुआ, अब उसको दाखिल होने के लिए मजबूर करो, उसको कैसा करते, प्यार से करो, लेकिन आप वजह बनो। अदखला, मैं वजह बना उसको दाखिल होने के लिए। किसी शादी में किसी को रुका नहीं है, इन्विटेशन नहीं है, भूल गए वो इन्विटेशन देना, तो आपने वो बंदे को इस्लाह करके शादी में लेकर गए, तो वो बन गया अदखला। आप वजह बने उसको शादी में हाजिर करने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ नीचे की आयत पढ़ी है, वक़ालो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्ना हसन हसन हज़न। तो और उन्होंने वो सब कहेंगे अल्लाह की तारीफ जिसने निकाल चुका है हमें गमों परेशानी से। अब जरा यहाँ पे जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा जरा अपना जहन लगाइए। यहाँ पे पहला जुमला पढ़िए, ऊपर में लिखा है सुलासी मुजर्रद अफवाह, जो हमने पुरानी फैमिली पढ़े थे, फैमिली 1, खराजा मायने वो निकला। अब इधर बाजू आगे लेफ्ट में उसने निकाला बनाना है, तो खराजा से बन जाएगा अखरजा। अखरजा इधर देखिए फिर नंबर 2 लाइन में दखला, वो दाखिल हुआ, उसने दाखिल किया अदखला। नजला उन्हें खुद उतरा, उसने उतारा अंजला। हलका वो हलाक हो गया, मर गया, उसने हलाक किया, मार डाला। अहलका आमा उसने खाया, खुद ने पेट भर के खा गया, अब उसने खिलाया। अतआमा समिया उसने खुद सुना, उसने सुनाया। अस्मा मेरे ख्याल से ये चार्ट ने आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगा। जी सर, लाजिम से मुताद्दी बनाता ये बेटा लाजिम से मुताद्दी बनाता है, और इसमें ये एक ही काम है। और अगर लाजिम अगर मुताद्दी पहले से है तो मुताद्दी दर मुताद्दी, दर मुताद्दी बनाता है जी सर। डाई ट्रांजिटिव जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, डाई डी आई डाई डाई ट्रांजिटिव। सर उसका कोई एग्जांपल दो। बहुत सारे एग्जांपल देखिए, अभी आप जरा गड़बड़ ना करो। हाँ, अब जरा कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, इनका जो है क्या कहेंगे, मजीद मुजर्रद जो होता है कुछ और होता है, और इनका जो मजीद ही बनता है, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसा खरजा उसने कट करा, उसने तोड़ दिया। अखरजा उसने उधार दिया। लकिया वो मिला। अलखा यानी उसने नीचे उतार दिया। 3 बड़े मीनिंग है इसके। एक तो ये लाजिम को मुताद्दी बनाता है, मुताद्दी को मुताद्दी दर मुताद्दी बनाता है, लेकिन कुछ कुछ सीगे ऐसे होते हैं जिसके अंदर मायने बदल देता है। चलिए यहाँ पे जरा देखेंगे, पढ़िए। इन्ना आतैना कल कौसर पढ़िए। जो रिमो दो ऑब्जेक्ट अभी आपने पूछे थे, अब यहाँ पे फेल देखेंगे हम। वर्ड का है बताइए यहाँ पे। कल ही हाफिज साहब ने ये वर्ड सिखाया है। कल का उसका ठीक है। तो यहाँ पे दो कौन दिख रहे हैं आपको? मफूल यहाँ पे दो जरा पहचान के बताओ मुझे। जी, एक तो का है और अल कौसर। कौसर एक मफूल मिल गई आपको है, माशाअल्लाह। जी अब इसमें आगे जाएंगे तो तीसरा ऑब्जेक्ट भी पैदा हो जाएगा। तीसरा कौन सा है भाई? इसीलिए अच्छा चलो आगे देखा करो, चलिए देखिए और भी देखा। पहले देखिए पहला लफ्ज, पहली सेंटेंस क्या है?
नजला नजला हामिदुन हामिदुन। मायने बताइए मुझे। हामिद उतरा, हामिद उतरा। ये लाजिम है। अब इसको हम बाप तफील में ले जाए। नज़ला हामिदुन खालिदन, हामिद ने खालिद को बड़े एहतमाम धीरे और धीरे तदरीज के साथ उतारा। उतारा। अब सर आ जाइए। अंजला हामिदुन खालिदन, हामिद ने खालिद का हाथ पकड़ के एक झटके में उतार दिया उसको। चल बे, क्या नखरे कर रहा। आप जरा देखेंगे। अलीमा, पढ़िए। अलीमा का मतलब उसने जाना, उसने जाना, हामिद हामिद ने ने जाना कुरान। जाना कुरान को, यानी कि हामिद ने कुरान की इंफॉर्मेशन लिया, उसकी तालीम लिया या इंफॉर्मेशन लिया, मालूमात लिया। अब अल्लामा लगा दीजिए। अब अल्लामा हमने बाप तफील पढ़े तो यहाँ पे भी दो अल्लामा मफूल आ रहे हैं। अल्लामा हामिदुन, बोलो हामिदुन अल कुरान। हामिदुन, हामिद ने खालिद को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तजवीज के साथ कुरान सिखाया। हामिद ने खालिद को बातदरीज स्टेप बाय स्टेप एहतमाम के साथ कुरान सिखाया। अब जरा नीचे पढ़िए। आलमा, आलमा हामिदुन अल कुरान खालिदन, हामिद ने खालिद को कुरान की मालूमात दी, खबर दी, मालूमात पहुंचाई। समझे? मालूमात दी। हाँ बेटा बिल्कुल। जरा यहाँ देखिए और ये पूरे वर्ड्स आपको पहले बता चुका हूँ, कोई नया नहीं। चलिए, तो हमारे स्लाइड को वापस चलेंगे हम, जहाँ पे एग्जांपल्स है। हमारे रेगुलर स्लाइड, ये डिटेल स्लाइड है ना कोई। चलिए आ जाइए। तो यहां तक हम देख लिए थे, अब यहां से देखेंगे हम। हाँ, फेरे लाजिम है, उसको मुताद्दी बना रहे हैं। बोलो खराजा, खराजा को लाजिम है ना। तो क्या बनेगा? अखराजा, अखरजा, दखला, अदखला, फला, नज़ला, नज़ला, अंज़ला। अंज़ला, हाँ दरबा। ठीक है, ये लाजिम है। और यहाँ देखिए धरबा, धरबा क्या है भाई? उतार देते ये हैं। बताइए। वैसे मैं आपको मुतद्दी और लाजिम का फर्क बता रहा हूँ यहाँ पे, जिसको नहीं पता था देख लीजिए। अच्छा, ये बाब इफाल है, बनाने का तरीका है। तो ये खरजा है, अखरजा बनता है। अब जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए हमारा पुराना क्या हुआ करता था भाई? नसरा, ये पहला फैमिली है। नसरा यंसुरु नसरन, दखला यदखुलु दुखुलन। याद है? उसने मदद किया, मदद करता है, मदद करना। वो दाखिल हुआ, दाखिल होता है, दाखिल होना। यहाँ देखेंगे अब हम आपके पूरे हर चीज को। हाँ चलिए पढ़ के बताइए। सुलासी मुद्दरब लाजिम, राइट हैंड साइड पे लाजिम है। पढ़िए। माजी क्या है? खारजा, बाप नून से आ रहा है ये। वो निकला, मुजारे यखरुजो, वो निकलता यखरुजु वो निकलता निकलता है, है। दाखला, वो दाखिल हुआ। दाखिल हुआ, यदखुलु, वो दाखिल यदखुलु वो होता दाखिल है। होता है। और नजरा नज़ला, वो वो उतरा, उतरा। यंज़ुलु, उतरता है। उतरेगा। हाँ, समझा, वो सुना। यस्माउ, सुनता है। अब एक एक लाइन पूरी पढ़ेंगे, यहाँ से राइट टू लेफ्ट। खरजा यखरुजु, इधर आइए। आखरजा युखरिजु। हाँ, राइट साइड अखरजा में लाजिम है। उसने निकाला, हाँ, युखरिजु लेफ्ट वो साइड निकालता में है। हाँ। जरा मेरी बात सुनिए आप सब लोग गौर करके। खरजा, और इधर आ जाइए। खरजा, खरजा मतलब वो नहीं। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है जी? क्यों सताते हो? तो बहुत इरिटेशन होता है मेरे को ऐसे सताए।
गलीज आवाज़ निकालते हैं। खरजा वो निकला, अखरजा वो निकालता है या निकालेगा। देखिए उसने क्या करा, अखरजा का मतलब क्या है भाई, उसने निकाला। खरजा का मतलब क्या है, वो निकला। अखरजा उसने निकाला किसी को। अब यखरुजु जरा गौर करिए, ये जेर जबर में बहुत भयानक फर्क होता है, इसलिए मैंने ये स्लाइड बताया है कि यखरुजु अलामत मुजारे को जरा गौर कीजिए। ये फैमिली वन है जिसके अलामत मुजारे पर जबर है और रे के ऊपर पेश है। ये जब जाके बनेगा, इफाल की शक्ल में जाएगा, तो पहले अलामत मुजारे जबर से पेश बनेगा युखरिजु। कुरान में ये दोनों सेगे आपको पहचानने के लिए क्या फर्क दिख रहा, जरा देखो, मेरे को बोलो, जोर से बोलो। एक है यखरुजु और एक यखरुजु, ये फैमिली वन है, और युखरिजु ये फैमिली फोर है। यखरुजु के मतलब देखो, वो निकालता है, वो निकलता है, और युखरिजु का मतलब वो निकालता है किसी और को। यखरुजु का मतलब उन्हें खुद निकलता, और युखरिजु का मतलब उन्हें किसी दूसरे को निकालता। ये बात को आप नोट कीजिए, यहाँ पर हम बड़ी भारी गलती कर जाते हैं, क्योंकि 4 लेटर इसमें भी है, 4 लेटर इसमें भी है। यहाँ पर के अलामात देखिए, यहाँ पर जबर दिख रहा है, इधर आएंगे आप बाप इफाल फोर फैमिली में, तो बाप के अलामत मुजारे पर पेश है। यहाँ पे आइन कलीमे पर पेश है, यहाँ पे आइन कलीमे पे जेर है। ये जरा खास आप रेड मार्कर से मार्किंग करके रखिए इसको। तो खास बाब नून के सेगों में आते हैं, बड़ी मुश्किल कर जाते हैं। अब जरा दखला की जांच कीजिए। दखला का मुजारे दखल देखो, माजी में कोई परेशानी नहीं है, माजी बड़ा भोला भाला है। ये मुजारे बड़ा खतरनाक होता है। मुजारे में पढ़िए यदखुलु, यदखुलु, इधर आ जाओ, यदखिलु, युदखिलु, देखो युदखिलु। अब मुझे बताओ, ये युदखिलु में और युदखलु में क्या फर्क है? अगर खास के ऊपर जबर कर दो तो मैं क्या होगा? हाँ, मजहूल हो जाएगा। मजहूल की पहचान ये है कि जबर सिर पे आता है। ये जो दिख रहा है आपको युदखिलु, वो दाखिल करता दूसरे को, उसने दाखिल किया दूसरे को। तो ये फैमिली जो है 2, 3, 4, इसके मुजारे से मजाक जमता नहीं, इसको पक्का करके रखो। इसके अलामत मुजारे पर पेश आता, आइन कलीमे पे जेर आता। अगर मजहूल बनाएंगे आप तो आपको याद होगा, यदखुलु का मजहूल बने, इधर है देखो, यदखुलु फैमिली वन को देखो, इसका मुजारे का मजहूल बनाने का तरीका क्या है? युद्ध लेंगे, हाँ, खालू करेंगे, युद्ध खालू। इतना ही फर्क है, एक पेश और एक जेर हमको ढेर कर देता। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे। जी सर, लिख रहे सर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा ये क्या होगा मालूम क्या, बहुत सारे लोग आपको पूछने वाले हैं इंशाअल्लाह, अरे भाई यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये तो बिल्कुल फैमिली वन दिख रही है, और ये दिख रहा है, ये जो आप कह रहे हैं मजीद फीही में भी जेर दिख रहा है क्या, तो फिर फर्क कैसा करूं मैं? तो बोलना मजीद फी की पहचान, मुजारे में गड़बड़, तो वहां पे अलामत मुजारे को पेश और ऐन कलीमे को जेर, ये उसकी सिग्नेचर है। और अगर उसके ऊपर जबर लगा देते हैं हम तो गड़बड़ हो जाएगी, वो चले जाएगा, फैमिली वन का मजहूल बन जाएगा। जी सर। तो जी सर, अगर समझ इसका गए। अमर, हाँ, इसका अमर बनाए तो बड़ा मजा आएगा, खुद खेल बन जाएगा। तो इसके फिर से
जो हमारा सर सगीर है, याद करना जरूरी है। जरा मैं बोलता हूं, जरा गौर फरमाइए आप। इसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे, सीन लाम मीम, और हमजतुल खता जोड़ लीजिए उसको। चलो शुरू हो जाओ। अस्लमा युस्लिमु इस्लाम इस्लामन वहुवा मुस्लिमुन। अब देखो, मुस्लिमा युस्लमु इस्लामन वहुवा मुस्लिमुन। मुस्लिम ला तुस्लिम। हाँ, तो आप एक बार रट्टा मार लो तो गलती से भी हो जाए, बाय मिस्टेक हो गई तो भी आप ये जो टेबल याद करे हैं, आप ये जो रट्टा लगाए हैं, वो गाना आपको सतह पर तीरते रहने लगाएगा, डूबने नहीं देंगे। तो किसी ने आपसे पूछा, क्योंकि देखिए ऐसा बहुत होने वाला है, जो कुरान पढ़ रहे हैं उन्होंने ये मुगालते में रहते हैं कि आप उस्तादनी है, और आपको मालूम होगा तो आपको मेल करके या व्हाट्सएप पे पूछते, बेटे बाजी ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपको उसका सही जवाब देना आना। आप इसकी नुमाइंदगी करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। चलिए नीचे आ जाइए, समिआ पे आ जाइए। समिआ यस्माओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अस्मा और युस्मीउ। तो मैं तकरीबन 10-15 दिन पहले कुछ लोग अरबी पढ़ रहे थे, जेर जबर के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे, तो मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा था, याद है आपको? इसीलिए चिल्ला रहा था कि आपकी अदायगी गलत हो जाए तो पूरा उल्टा हो जाएगा। आया समझ में आपको? तो जी सर। ये जो फ्रेम है लिख लीजिए आप, और आ जाइए गर्दान की तरफ। तो ये बाप नून से आ रहा है, जरा देखिए। अफअला फाला, पहले अपना देखिए, पुराना पढ़ा हुआ फैमिली वन। फाला, ये क्या बनेगा? अफअला फाला अफअला, फालो अफअलो, फालत अफअलत, फालता अफअलता, फालना अफअलना, फालता अफअलता, फालतुमा अफअलतुमा, फालतुम अफअलतुम, फालती अफअलती, फालतुमा अफअलतुमा, फालतुन्ना अफअलतुन्ना, फालतु अफअलतु, फालना अफअलना। चलिए यहाँ पे अस्लमा डाल के पढ़ेंगे हम। सीन लाम मीम डालो। अस्लमा अस्लमा, अस्लमो अस्लमत, अस्लमता, अस्लमना, अस्लमता, अस्लमतुमा, अस्लमतुम, अस्लमती, अस्लमतुमा, अस्लमतुन्ना, अस्लमतु, अस्लमना। चलो अखरज आएंगे। अखरजा, ये बहुत कुरान में इस्तेमाल हुए वर्ड है। हाँ, अखरजा, अखरजा, अखरजू, अखरजत, अखरजता, अखरजना, अखरजता, अखरजतुमा, अखरजतुम, अखरजती, अखरजतुमा, अखरजतुन्ना, अखरजतु, अखरजना, अदखला, अदखला, अदखलू, अदखलत,
أدخلت أدخلنا أدخلت أدخلتما أدخلتم أدخلتي أدخلتما أدخلتن أدخلت أدخلنا أنزل أنزل أنزلوا أنزلت أنزلت أنزلنا أنزلت أنزلتما أنزلتم أنزلتي أنزلتما أنزلتنا أنزلتو أنزلنا. یہ ہو گئی ماضی کی پریکٹس. ماضی بہت آسان. اب ذرا مضارع دیکھ لو. پہلے اپنا فیملی ون پڑھیں گے. یفعلو یفعلانے یفعلونا تفعلو تفعلانے یفعلنا تفعلو تفعلانے تفعلونا تفعلینا تفعلانے تفعلنا افعلو نفعلو. چلیے یہاں پہ اب ڈالیں گے ہم مزید بھی. یفعلو یفعلانے یفعلونا تفعلو تفعلانے تفعلنا یفعلنا تفعلو تفعلانے تفعلونا تفعلینا تفعلانے تفعلنا تفعلو نفعلو. چلو یخرجو بولے گا. یخرجو یخرجو یخرجانی یخرجونا تخرجو تخرجانی یخرجنا تخرجو تخرجانی تخرجونا تخرجینا تخرجانی تخرجنا تخرجو نخرجو يدخلو يدخلو يدخلاني يدخلون تدخلو تدخلاني يدخلن تدخلو تدخلاني تدخلون تدخلين تدخلاني تدخلنا ادخلو ندخلو. ہاں ينزلو ينزلاني ينزلون تنزلو تنزلاني ينزلنا تنزلو تنزلاني تنزلون تنزلين تنزلاني تنزلنا انزلو ننزلو. ماشاء یہ تو پڑھا دیا. تو میں یہاں رکتا ہوں. حافظ صاحب کو دوں گا. پیر کے روز انشاءاللہ اس کا اور تھوڑا سا مطالعہ کریں گے اور اس کو ہم پکا کریں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بہت اہم صیغہ ہے. کیونکہ یہ پورے 8 باب میں سے سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہونے والا باب ہے. اس کا نام ہے باب افعال. ٹھیک ہے؟ اس کا وزن ہے افعلا یفعلو. تو 3 میجر ہم نے باب مزید بھی پڑھ لیے ہیں. اس کو ایکسٹینشن کریں گے پارٹ 2 میں اور زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد 4 تک کہو گے ہم. پھر 5 اور 6 ایک ہی دن میں پڑھیں گے دونوں. 5 اور 6 ایک ہی دن میں پڑھیں گے کیونکہ آگے بڑی آسانی ہونے والی ہے ہماری. چلیے شکرا کثیرا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو فعل ہم نے نکالے تھے اس کے مصدر ڈھونڈے کیا آپ نے؟ جی سر، بولیے۔ آتا، یوتی، آتے، لاتوتے، ہم، اتیان، اتیا، اتیاءن، معنی کیا ہے اس کے؟ دینا، دینا۔ بہت اچھے۔ اس کے بعد تبع، ہم، اتبع، یتبع، اتبع، تتبع، اتباعن، جی بہت اچھا، اتباعن۔ پیروی کرنا۔ ہم، اس کے بعد ارسل، یرسلو، ارسل، لا ترسل، ارسالن، بھیجنا۔ بھیجنا۔ بہت اچھے۔ نیکسٹ۔ انذر، ینذر، انذر، لا تنذر، انذارن، ہاں، ڈرانا۔ لا تنذر اور انذارن۔ لا تنذر، آتا، یعطی، آتے، لا تعطے، اعطاءن، دینا۔ ہم، استفا، یستفی، استفے، لا تستفے، استفاعن، چننا۔ اور کون سا فعل ہے؟ بس اتنا ہی سر۔ نہیں سر، 5 ارسلہ، اور تھے شاید۔ ارسل، ارسلہ، ہاں، ارسالن۔ 6 بس اتنے ہی تھے نا؟ جی سر۔ تو یہ سب ان کے مصدر ہے۔ یہ پہلا آتا، یوتی، آتی اور لا تؤتی۔ یہ جو آتی ہے یہ پہلا لفظ ہے، یہ روزانہ ہم ایک دعا میں استعمال کرتے۔ اس کا فعل الامر کیا ہے؟ آتینا ربنا، ربنا آتینا، آتے، ہاں، فعل الامر آتی، آتی، ربنا آتی آتینا، نا، تو دے ہمیں، ہمیں ہمیں، تو دے ہم سب کو۔ اور اگر آتینا پڑھ لیے تو ہم نے دیا، ہم نے دیا، آتینا ہم نے دیا، آتینا تو دے ہمیں۔ تو دے، تو یہ بہت سارے کامن مسٹیکس ہے، بہت سارے لوگوں کی یہ غلطیاں ہیں، پرانے لوگوں کی۔ اگر آپ کسی کو سنیں تو آپ اس میں کریکشن کرتے جائیے۔ آتینا، آتینا نہیں ہے، آتینا ہے۔ آتینا مانے آتینا، تو دے ہمیں، تو دے، اور تو دے ہمیں۔ پڑھتے تھے ہاں، اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہم ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب تو دے ہمیں دنیا میں حسنا، اچھائی۔ بھائی، اور اگر آتینا بول دیا تو پھر ہم نے دیا۔ ہم نے دیا تجھے۔ چلیے ہم آگے کی آیتیں پڑھیں گے آج۔ یہ سلائیڈ کے اندر 23 نمبر والی آیت آج پڑھنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ۔
कौन पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ना सर? हाँ पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। जी। और हमने नाजिल किया। अंज़ला फेल फेल जमा मुतकल्लिम है। जी। हाँ, अलैकुम तुम पर, और हमने नाजिल किया तुम पर मन्ना व सलवा, मनो सलवा, और हमने बनाया तुम्हें शुऊबन, खानदान, और क़बाइल में। कबीलों में। बहुत अच्छे। ये यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ ये आयत है, इस व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, ये एक अलग आयत है। अच्छा, और वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, ये कहीं और की आयत है। ये आयत एक साथ नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने नाजिल किया तुम सब पर मन और सलवा। अब दूसरी जगह की दूसरी आयत है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने बनाया तुम सबको खानदान और कबीला कबीलों में। में। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 24 नंबर वाली आयत, लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम। नरगिस सैयद आप पढ़िए। इधर पढ़े, लव शाअ रहमानु मा अबदनाहुम। लव, अगर शाअ रहमान, अगर रहमान चाहे, मा अबदनाहुम, नहीं हम इबादत करें उन सब की। हाँ, ये यहाँ पे जो लव एक हर्फ इस्तेमाल हुआ, ये हर्फे शर्त है, शर्तिया भी। शर्तिया जुमला है, लौ शाअ अर्रहमानु। अब इसके बाद जो अगर माजी का जुमला आया तो ये इजा जो हमने पढ़े थे उसके तरह चलेगा। ये लौ शाअ अर्रहमानु, अगर रहमान चाहता, मा अबदनाहुम, तो हम सब इबादत नहीं करते उनकी। उसके बाद एक जुमला है, कौन पढ़ेंगे? रेहाना बाजी पढ़िए। जी अच्छा। अतैना अरे आला देख के इब्राहिम। पढ़िए, आतैना, आतैना। अच्छा, और मद है, आतैना आला इब्राहिम, जी। हमने अता किया आले हमने इब्राहिम। दिया, हमने दिया। अच्छा, तो ये आया तो आतैना। हाँ, आइन और तोय आया तो अता किया, हाँ, ता ये आया हमने तो दिया। दिया। हाँ जी, अच्छा, हमने दिया आले इब्राहिम को। हाँ, हमने दिया आल इब्राहिम को। 26 नंबर वाली आयत भी पढ़िए आप। वहदैना हम इला सिरातिम मुस्तकीम, और जी। हमने दिया हिदायत हम्म उन सबको इला हम्म सिरातिम मुस्तकीम, सिरात सीधे रास्ते की तरफ। सीधे रास्ते की। जी बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो आयत है 26 नंबर वाली, ये जो जुमला है, इसके अंदर एक मुरक्कब है। वो कौन सा मुरक्कब है आपको पहचानना है। वहदैना फेल है वो। मुरक्कब तौसीफी। ये हदैना जो है ये फेल है। सर इला सिराती मुस्तकीम है सर। हाँ, इला सिरातिम मुस्तकीम, ये दो मुरक्कब हो गए। जी, मुरक्कब और एक तौसीफी। ये बोल दीजिए, सिरातिम मुस्तकीम कौन सा मुरक्कब है? सीधे रास्ते पर। मुरक्कब तौसीफी सर। हाँ, मुरक्कब तौसीफी है, तौसीफी क्योंकि ये दोनों भी सिफत है। DING दोनों भी सेम है, सिरातिम मुस्तकीम।
चलिए वहदैनाहुम इला सिराति मुस्तकीम, और हमने हिदायत दी उन सबको उन सीधे रास्ते सबको की तरफ, सीधे सीधे रास्ते रास्ते की। बहुत अच्छे। अभी नजमा बाजी पढ़ेंगे 27 नंबर वाली आयत। जी सर। हम्म, नज्जैनाहुम मिन अजाबिन गलीज, जी। हमने नजात दी उनको हम्म, सख्त अजाब से, हाँ, हमने नजात दी उन सबको सख्त अजाब से, दर्दनाक सख्त अजाब। आजाब से। जी। जी। अब यहाँ पे भी आजाबिन गलीज, ये भी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है सर। नहीं नहीं नहीं, तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी है। जी सर। चलिए बहुत अच्छा, जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। 28 नंबर वाली आयत पढ़ेंगे जमीला बाजी। इन्ना अंज़लना तौराता फीहा हुदन व नूरुन नूरुल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। बेशक हमने नाजिल किया तौरात, उसमें हिदायत है और रोशनी है, किताब की रोशनी है। और ये भी हिकमत अलग है। अलग आयत है। इन्ना अंजलना तौरात फीहा हुदन व नूर, ये भी आयत अलग अलग है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पहले तर्जुमा कर दीजिए। बिलाशुबा हमने नाजिल किया तौरात को, उसमें हिदायत और हम्म, नूर है। हाँ, उसमें उसमें है हिदायत और नूर। रोशनी। नूर। और रोशनी नहीं है उसके मायने, उसके मायने है नूर, नूर। अब उसके बाद वाला पढ़िए, अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहु मुल्कन अजीमा। अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। हिकमत वाली किताब। नहीं नहीं, ये असल में इसके पहले एक फेल है, वो फेल का मफूल है, यानी कि हमने दिया उसे किताब और हिकमत। वो हमने उसे आतैनाहु मुल्कन अजीमा, और हमने दिया उसे उनको बादशाहत बड़ी, बड़ी मुल्कन बात। आजिमा बड़ी बादशाहत। मुल्क का चलिए बहुत नजीम अच्छा। सर तौसीफी। यहाँ बड़ी मुरक्कब रियासत, तौसीफी। मुल्कन आजिमा मुरक्कब तौसीफी है। बहुत अच्छे। चलिए अब उसके बाद वाली आयत पढ़ना है, 29 नंबर वाली आयत। रोशन आरा बाजी है क्या? सर ये अल किताब वल हिकमत, ये मौसूफ सिफत क्या? अस्सलाम वालेकुम नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, मौसूफ सिफत नहीं है, क्योंकि बीच में वाव आया। देखिए, अल किताबा, उसने दिया उसे, हम एक फेल लेके चलेंगे, उसने दिया उसे। अल किताब किताबा, किताब, वल और हिकमता, और हिकमत। यानी कि हम ऐसा बोल के एक फेल हम ऐसा लेंगे, वअल्लमनाहुल किताबा वल हिकमा, और यही फेल इस्तेमाल हुआ। वअल्लमनाहु, उसने सिखाया उसे, अल किताब, किताब सिखाया यानी कि शरीयत सिखाया, वल हिकमा, और हिकमत सिखाया। आतैनाहुम मुल्कन अजीमा, और हमने दिया उन्हें अजीम रियासत, बड़ी बादशाहत। चलिए 29 नंबर वाली आयत पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम। मीनिंग तो समझ में नहीं आता सर मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत पढ़िए। हाँ, व अदखलना फी रहमातिना इन्नहु हाँ मिनस सालिहीन। जी। और वो, हाँ, खिलना का मतलब है अदखलना, हमने उस दाखिल किया। हमने नाजिल किया, दाखिल। नहीं, दाखिल किया, दाखिल किया, हमने एंटर दाखिल किया। किया, दाखिल किया रहमत बेशक मिनस साहिल नेक लोग के लिए। नहीं नहीं, अब देखिए, आप सुनिए। व अदखलनाहु फी रहमतिना, अदखलना फेल है, तो अदखलना यानी कि हमने दाखिल किया। उसको अभी जो बाब इफाल पढ़ रहे थे, तो बाब इफाल के अंदर सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी में अभी सर ने फर्क बताए। दखला वो दाखिल हुआ, अदखला उसने दाखिल किया।
تو دخلنا کے معنی ہوتے ہیں ہم داخل ہوئے، اور ادخلنا کے معنی ہے ہم نے داخل کیا، وادخلنا اور ہم نے داخل کیا ہو اس کو اس کو اسے، فی رحمتنا ہماری رحمت میں، رحمت اور میں، ہم نے داخل کیا اسے ہماری رحمت میں، انہو من الصالحین بے شک، بے شک یقیناً، بے شک بلا وہ شبہ وہ نیکوکاروں میں ہے سے ہے، من الصالحین، صالحین میں سے، نیکوکاروں نیکوں میں سے، نیک جی نیک لوگوں میں سے۔ چلیے بہت اچھے۔ ابھی اس کے اوپر والی آیت ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، جی یاسمین سلطانہ۔ جی سر، حرف عطف ہے، آتینا جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے سر، فعل بالفاعل، آتینا فعل ہے، نا فاعل ہے، نحن فاعل ہے، موسیٰ اور ہم نے دیا موسیٰ الکتابہ، موسیٰ کو کتاب، فعل فاعل، الکتابہ مفعول ہے، اور ایک پھر سے جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ دوسرا جملہ شروع ہو رہا، جعلناہ، اور جعلا فعل ہے، نحن فاعل ہے سر اس کا، اور ہو مفعول ہے، ہدن بھی ایک مفعولی ہے سر، کیوں وہ تو حالت نصب میں ہے، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، جی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ موسیٰ کتاب مضاف بولے گئے، موسیٰ الکتاب نہیں مضاف نہیں ہے، یہ جو موسیٰ یہ لفظ ہے یہ اس میں علم ہے اس میں اور مبنی ہے، تینوں حالتوں میں ویسے ہی لکھا جاتا۔ لی حرف جر ہے سر، لی ہاں لی حرف جر یہاں پہ ہے، وآتینا اور ہم نے دیا موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ الکتاب، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب۔ اب یہاں پہ دیکھیے غور کیجئے، آتینا فعل ہے، موسیٰ مفعول ہے، الکتابہ بھی مفعول ہے، تو دو مفعول آ گئے، تو یہ فعل کون سا ہو گیا؟ باب افعال کی خصوصیت متعدی در متعدی، متعدی در متعدی، یعنی کہ دو آبجیکٹ لگ جاتے ہیں۔ وآتینا موسیٰ الکتابہ، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ یہاں پہ دو مرکب ہے، لام زیر لی حرف جر ہے، بنی یہ دونوں مل کے مرکب جاری، بنی اسرائیلہ یہ دونوں مل کے مرکب اضافی۔ اضافی۔ ہاں چلیے بہت اچھے۔ سلیم صاحب پڑھیں گے آیت نمبر 31 اور 32 دونوں کی۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور سفینہ والے کو، کشتی والے، کشتی والے کو۔ ہاں، انجینا اور اصحاب جو ہے یہ جمع ہے تو کشتی والوں، کشتی والوں کو، جی ہاں کشتی والوں کو، یا پھر کشتی والے ساتھی۔ جی۔ اس کے بعد فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو بنایا ہم نے اس کو سننے والے اور دیکھنے والے، سننے والا اور سننے والا اور دیکھنے دیکھنے والا۔ والا۔ بہت اچھے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ مرکب توصیفی آخری میں، سمیعن بصیرن یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، دونوں بھی صفت ہے وہ۔ اچھا اچھا، مرکب توصیفی کے لیے ایک موصوف ہونا اور دوسرا صفت ہونا، یہ جی دونوں جی بھی سر، صفت ہے، اس وجہ سے یہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔ نہیں بنے گا، جی سر جی جی۔ اصل میں اس کے بیچ میں، وہ دونوں کے بیچ میں ایک واو آتا تو واو حذف ہونے والا ہے وہ۔ اچھا اچھا، چلیے اس کے بعد کون پڑھیں گے؟ نمبر 33
खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पढ़ूं? वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। खलक़तनी हमने उस खलक़तनी तूने बनाया मुझे, मिन नारिन आग से, और खलक़तहु और तूने बनाया उसको, मिन तीन मिट्टी से। मा उसके आगे का भी पढ़िए। अल्लमनाहु मा अल्लमनाहु शिरा, नहीं अल्लमना हम जानते उसको नहीं। शूर। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, आपने जी। मायने बताए हम जानते, हमने सीखा। अलिमना हम जानते, जी। और वो लिखा हुआ है अल्लमना अल्लमना। हमने सिखाया उसको। आइन लाम और मीम, आइन जी लाम मीम तीन हरूफ वाला मादा है, लेकिन जी लाम के ऊपर तशदीद आ गया। आइन है फा कलिमा, लाम है आइन कलिमा, और मीम है लाम कलिमा। अब जी यहाँ पे अगर गौर करेंगे, आइन फा कलिमा है, लाम आइन कलिमा है, मीम लाम कलिमा, तो आइन कलिमा डबल हो गया। डबल। आइन जी कलिमा डबल हो गया तो एक हर्फ का इजाफा हो गया, और जब बात एक लाम का। हर्फ का इजाफा हो गया तो वो मुजर्रद से मजीद भी बन गया, जी जी और मजीद भी बन गया तो फिर 8 बाब में से कौन से बाब में आ गया? तफील तफील फ़अल बाब युफ़अल तफील। तफ़ील। बाब तफील। हाँ, और फिर बाब तफील का मसाला क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है? आइन कलीमे पे स्टेप बाय स्टेप, डबल होगा वो। स्टेप बाय स्टेप बात बतदरीज, तदरीज। एहतमाम के साथ, जब भी जी जरूरत पड़ी तब, मुबालगा, ये तमाम चीजें आ गई। अल्लमना, अलिमना हमने जाना, यानी कि हम जी खुद जाने उसके बारे में, और अल्लमना हमने सिखाया, तो ये है जी वो अल्लमना हमने सिखाया। उसके सिखाया साथ उसको। माँ लग गया तो हमने नहीं सिखाया। हाँ, माँ अल्लमना हो, हमने नहीं सिखाया, तो किसको नहीं सिखाया? उसको नहीं उसको सिखाया। अश्शिअरा, क्या नहीं सिखाया? शेर शेर शायरी। शऊर नहीं। शऊर के नहीं, माने क्या है शऊर नहीं सर? है वो, शऊर नहीं है वो, शायरी। शेर है, शेर, शायरी, शायरी। शियर। ओके। नहीं, यहाँ पर जो मीनिंग लिखा हुआ है शऊर। नहीं नहीं, वो गलती से आ गया, वो गलत हो गया, वो शायरी है वो असल में। अच्छा, हमने तो नहीं इसका चलिए पूरा अभी, माना होगा, नहीं हमने सिखाया उसको शेर। हाँ, हमने नहीं सिखाया उसको शेर, ऐसा बोलिए। शायरी। शेर बोलना, हमने नहीं सिखाया उसको। हम तर्जुमे में एक और चीज गौर कीजिए आप लोग, हम तर्जुमे में क्या कर रहे हैं? नहीं हमने सिखाया उसे, अगर बोलने का तरीका बदल गया तो नहीं हमने नहीं सिखाया, वो हमने पॉजिटिव में सिखाया हो उसे। जाता है। पहले जी बात जी एक ही जी। लफ्ज को अलग अलग अंदाज में बोलना तो वो कभी सवाल बन कॉमा जाता, कभी कॉमा आ ताज्जुब बन जाता जाता। अच्छा, है। जी 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 अच्छा सर एक जी। लफ्ज है अच्छा, अगर उसको अलग अलग तरीके से बोले अच्छा, तो अच्छा ताज्जुब की नजर से अच्छा, जी सर। डरा दे रहे हो उसको, अच्छा, तो समझ जाना, समझ में आ जा रहा, हाँ बात समझ में आ गई। अच्छा अच्छा, रोको मत, नजरअंदाज कर दे। तो एक ही रोको मत, लफ्ज को जाने अलग दो अलग बोले। तरीके से बात करना, तो इसको आप बोलिए कि हमने हमने नहीं नहीं सिखाया, सिखाया। नहीं सिखाया उसको। जी सर। हाँ, चलिए, जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाहु खैरन खैरन कसीर। कसीर। अभी पढ़ेंगे उसके बाद वाली आयत, एमएस। इन्ना अंजलना, इन्ना हरफ तौकीदीन व नस्बीन है, और उसके साथ नाहनों का सीगा ना भी मुत्तसिल ज़मीर है। इन्ना बेशक हमने, अंजलना हमने ही उतारा, वो उसे फी लैलतुल कद्र में। बहुत अच्छे। ये नहीं उसके बाद है ये मुबारक कतिन। अब ये जो है फी लैलतिल कद्र एक अलग जगह इस्तेमाल हुआ, फी लैलति मुबारकतिन ये अलग जगह इस्तेमाल हुआ।
تو ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں، اور اگر فی لیلۃ مبارکہ اگر بولیں گے تو ہم نے نازل کیا اسے مبارک رات میں۔ مبارک رات میں۔ مبارک رات میں۔ ہاں، چلیے اس کے بعد والا پڑھیے۔ انا بے شک، اس میں بھی متصل ضمیر نحنو ہے۔ انا بے شک ہم نے ہی ہدایت دی، ہدینا اسے سبیل، سیدھا راستہ۔ سبیل کے معنی ہے راستہ۔ بے شک ہم نے ہی اسے سیدھا راستہ دکھایا، بے شک ہم نے ہی ہدایت دی اسے راستے کی۔ ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ ہاں، سیدھا نہیں ہے یہاں پہ، خالی راستے کی۔ اگر مستقیم اگر آگے آیا تو پھر سیدھا راستہ۔ یہ سبیل کے معنی ہے صرف راستہ۔ چلیے بہت اچھے۔ اس کے بعد سر علامہ کا معنی کیا ہے سر؟ علامہ اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا، علامہ عالمہ کے معنی بھی وہی ہے، اس نے اس کو انفارم کیا۔ ابھی عالمہ ہے تو خود جانا، یعنی کہ ہاں خود اس نے جانا، تو کام کسی اور پہ ہو رہا کیا؟ نہیں، خود پہ نہیں ہو رہا، لازم ہے، لازم۔ یہ جو انفارمیشن اس نے خود کلیکٹ کیا، خود جانا، یہ کسی اور کو بتانا ہے، سامنے والے کو بتانا ہے، تو یہ ہو جاتا اعلمہ۔ اب یہاں پہ یہ لازم تھا، انٹرانزیٹو تھا، یہاں باب افعال میں آنے کے بعد متعدی بن گیا، ٹرانزیٹو بن گیا۔ علمہ اس نے جانا، اعلمہ اس نے سامنے والے کو بتایا، وہی انفارمیشن، جانکاری دیا، جانکاری دی، جی۔ اور یہی جب چلے جاتا علامہ کے اندر تو پھر یہ ہو جاتا وہی جانکاری دیا، لیکن وہ سکھانے کے انداز میں دیا، اس کو سکھایا، ہر ایک چیز بتایا۔ جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ مطلب انفارمیشن دے دیا ایک مرتبہ میں، ہاں ایٹ ونس۔ اس نے معلومات دی، معلومات دی، اس نے معلومات دی۔ چلیے اس کے بعد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یہ آ گیا دیکھو، یہ جو پچھلی آیت تھی الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یہ آ گیا آتینا آل ابراہیم الکتاب، یعنی کہ ہم نے دیا آل ابراہیم کو الکتاب، کتاب دیا، والحکمہ اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے دیا سب کو عظیم ریاست، بڑی بادشاہت۔ جی چلیے اس کے بعد 36 نمبر والی آیت 36 کون پڑھیں گے؟ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا، جی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، فیہ اس میں ہے ہدایت، ہدایت ہے، اور نور ہے، روشنی ہاں ہے۔ بہت اچھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ آتینا ہے تو عطا کیا ترجمہ نہیں کرنا ہے، ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ جی آتا جب آئے گا عین اور توئے والا تو وہاں پہ ہم بولیں گے عطا کیا۔ آتینا کے معنی ہم نے دیا، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے دیا اسے انجیل، فیہ ہدی و نور، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دو آیتیں سیم ہیں، اس میں ہم کو تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے، غور کرنے والی بات۔ جی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، فیہا ہدی و نور، نازل کیا، ہم نے نازل کیا تورات، اس میں ہے ہدایت اور نور، وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی و نور۔ یہ دونوں جملوں کے اندر فعل کے علاوہ
ایک اور چھوٹا سا فرق ہے، وہ کون سا فرق ہے، کون بتائیں گے، کون پہچانیں گے؟ تورات انجیل مونس مذکر کا فرق ہے. مؤنث اور مذکر کا فرق ہے. فی یہاں پہ مذکر فی ہی ہے، یہ جو وہ مذکر. استعمال ہوا یہ جی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جی ہاں انجیل یہ مذکر اسم ہے، مذکر اسم ہے. اور التورات تا مربوطہ کے ساتھ یہ مؤنث اسم ہے، اس مؤنث. وجہ سے یہاں پہ ہا کا استعمال ہوا. جی جی سر یہ ہے. جی فیہ ہدی و نور، فیہا ہدی و نور. عطا کے اندر آنکھوں میں فرق، فزیکل چیزیں دیں گے وہ تو بتائیں گے، فزیکل چیزیں دیں گے تو دے دے، اور ایبسٹریکٹ چیزیں دیتے ہیں نعمتیں. سر آواز کلیئر ہونے سے سمجھ میں نہیں آ رہا. آتینا اور آتینا، یعنی کہ آتا اور آتا دونوں میں فرق یہ ہے کہ آتا جو ہے یہ کوئی ایک چیز دینا، یعنی کہ فزیکل چیز دینا، کوئی ایک شے ہے وہ دینا، جیسے آپ اس کو محسوس کر سکتے، بادشاہت ہو گئی، ریاست ہو گئی، یہ نظر آ رہی، دکھ رہی ہر چیز. اور آتا یعنی کہ عطا کرنا، یہ الگ چیزیں. وہ ہارڈ ویئر جو ہے نا دیتے ہیں، سافٹ ویئر آتا ہے، ہارڈ ویئر آتا ہے اور سافٹ ویئر آتا ہے، عطا کرنا. گیپ کی چیزیں. ہاں فزیکل اور ایبسٹریکٹ. فزیکل اور ایبسٹریکٹ چیزیں. چلیے کون پڑھنے والے ہیں آپ؟ 37 نمبر آیت. ہاں پڑھیے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے ہدایت دی ان سب کو سیدھے راستے کی. ہاں اس کے بعد والا بھی پڑھ لیجیے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم سب کو اٹھایا تمہاری. پھر سے پڑھیے یہ 37 نمبر والی آیت پھر سے پڑھیے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے ان سب ہدایت دی سیدھی. اور ہم نے یقیناً ہدایت دی، لام جو ہے تاکید کے لیے آیا، ابتدائی لام. اور یقیناً ہم نے ہدایت دی ان سب کو سیدھے راستے کی. سیدھے راستے. جی چلیے 38 نمبر پڑھیے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اٹھایا تم سب کو من بعد موت، تمہاری موت کے بعد. اور ہم نے اٹھایا یا زندہ کیا واپس تم سب کو. بعثنا دوبارہ اٹھایا، دوبارہ پھر ہم نے دوبارہ اٹھایا تم سب کو من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. چلیے 39 نمبر 39. ہم نے دی ان سب کو کتاب اور حکمت اور نبوت. جی حکمت نہیں ہوگا نا، اور ہم نے دی ان سب کو کتاب. جو چھوٹ گیا کتاب، یہ کتاب کے جو معنی ہیں اس کے 2 معنی آتے، ایک ہے فزیکل ایک کتاب اور دوسرا ہے شریعت. شریعت دی، آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ہم نے دیا ان سب کو شریعت، حکمت اور نبوت. حکمہ کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ حکمت وزڈم معنی سیم ہے. مونس جب پڑھیے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، فا حرف عطف ہے سر، تو اغرقنا فعل ہے
ये मजीद फी का है जो आजिज पढ़े हम मैंने सर इफाल बाब इफाल से है। हमने गर्क किया हमने गर्क किया उन सबको हम उन सबको ना फाइल है हम मफूल है फिल यम्मी ये मुरक्कब जारी है मुताल्लिक़ फेल है और फिल यम्मी यम्मी बोले तो क्या है कि सर दरिया यम्मी दरिया में जी समंदर हमने गर्क किया उन सबको दरिया में दरिया में। और अल बहरा के मायने समंदर होते, यम्मी जो है ये दरिया है। जी दरिया और दरिया समुद्र के अलग प्रकार अलग से होते हैं। हाँ चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये आयतें हमने पढ़ ली है। अब इसके अंदर से फेल कौन से है बताइए, जी 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 यहाँ फेल है कौन से नए फेल है बास यहाँ से? बास में गए अलका अल्लामा हदैना दा शाह अच्छा यहाँ से अदा हदैना अंजलना आतैना शाह शाह अबदा हदा और अबदा अबदा भी है, नज्जैना अबदना था अबदा। नजैना हो गया, अंजैना हो गया, अगरकना 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 अगरका। और अबसा मबऊस बासा बासा हाँ बासा बास और अदखलना अदखला अदखला हो गया हो गया क्या वो? नहीं हो सर लिख लेंगे। अदखला नहीं हुआ है वाला करने पड़ा। और कौन सा है फेल? नज्जैना नजैना भी हो गया, हो गया अच्छा अल्लमना भी हो गया, जी सुन हो गया हदैना अल्लामा ये भी हो गया अल्लामा अल्लमा हो गया ना, पहले लिख दिया अपन, अगरक हो गया सर हो गया वो भी ले लिया। हो गया। चलिए इतने फेल हो गए, इसके अंदर जो इस्तेमाल हुए इनका माजी मुजारे अम्र नाहिया। शाह यशाओ अगरकना यशाउ शाह शाह अच्छा ला तशा ला तशा शाह ला तशा हदा यहदी यहदी। इसका फेलुल अम्र इहदी। ला तहदी ये रोजाना सूरह फातिहा में आता है, इहदी ला तहदी ला तहदी ला तहदी ला तहदी। अबदा अबदा याबुदू याबुदु याबुदु उबुद उबुद ला ताबुद ला ताबुद ला ताबुद अगरका युगरिक अगरका युगरिकू युगरिकू अस्लमा युगरिक आज ही पढ़िए बाबी फाल। अगरिक 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 ला ला तुगरिक अगरिक ला तुगरिक ला तुगरिक ला तुगरिक बस आइए बस बासा ये बस यबसु ये बस युबिसु युबस्त इबस इबाइस इबास ला इबास ला ला तबस तबास तबस इबास ला तबस ला तबास अदखला अदखला युदखिलु युदखिलु
अदखिल 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 ला तुदखिल ला तुदखिल ला तुदखिल। कल इसका मसदर और ये कौन से बाब से आ रहा है वो बताना है। चलिए रुकेंगे आज यहाँ पे। जरा लिख ले रहे सर। जी शाह के मायने हैं उसने चाहा, और रोज हम पढ़ते माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही है वो। माशा अल्लाह के मायने हैं, माँ जो इस्तेमाल हुआ वो इसमें मौसूला है, माशा अल्लाहु जो अल्लाह ने चाहा, और इंशा अल्लाहु इनके मायने हैं अगर, शाह अल्लाहु अगर अल्लाह ने चाहा। हाँ हो गया, लिख लिए। एक मिनट। हो गया। जी चलिए, और ये जो फेल हम नोटबुक में लिख रहे हैं, शुरुआत से भी हम लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आखिरी तक जब तक हमारी क्लास चलेंगी तब तक ये पूरे अंदर के हम फेल निकालेंगे और वो लिखेंगे। और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग, आपका जो लिखे हुए नोट्स है, जो आपने लिस्ट बनाए वाली है वर्क की, आप वो ग्रुप के अंदर भेजेंगे, सब फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके। सिर्फ यही है ना फेल की? हाँ फेल की बस, आपके नोट्स नहीं। जी फिर इतनी बड़ी है। चलिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। क्या? ओहो हो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर हमें दुआ अस्सलाम का तर्जुमा रहमतुल्लाहि व करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर हैं आप?